کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جس جگہ پر یا اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے اوپر بھارت کا کوئی قانون نہیں چلتا ہے؟ بھارت تو چھوڑیے، بلکہ یہاں پر رہنے والے یہ جو لوگ ہیں پچھلے ہزاروں سالوں سے پوری کی پوری دنیا سے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ یہ آج 21ویں صدی میں بھی کہ جب ہماری دنیا حد سے زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، بالکل ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہمارے پوروج آج سے لگ بھگ 10-15 ہزار سال پہلے گزارا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج نہ تو باقی دنیا ہی ان سے کانٹیکٹ بنانا چاہتی ہے اور نہ ہی یہ لوگ خود بھی باقی دنیا کے کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور تو اور ان کے بارے میں دنیا کے کئی علاقوں میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ آدم خور ہیں، مطلب کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسانوں کو کھاتے ہیں۔ اب یہ سچ میں ہی آدم خور ہیں یا نہیں؟ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ ان کا اتہاس کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں اور آج کے دور میں ایگزیکٹلی انڈیا کے کس علاقے میں رہتے ہیں؟ یہ ساری ہی چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ بات ہے 2 اگست 1981 کی رات کی کہ جب رات کے اندھیرے میں مرغی کا چارہ لے کر چلنے والا ایک جہاز بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے بیچ سفر کر رہا تھا۔ موسم کے حد سے زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے اور تھوڑی کنفیوژن کی وجہ سے یہ جہاز اچانک سے راستہ بھول گیا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا، مگر جب صبح ہوئی تو کیپٹن کے دل کو اس وقت تسلی ملی کہ جب اس کو سامنے زمین نظر آئی، مطلب اس کا یہ بھٹکا ہوا جہاز جیسے تیسے ایک ٹاپو کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ ویسے تو ٹاپو کی یہ زمین اب جہاز کے بالکل قریب ہی میں موجود تھی، مگر موسم کے حد سے زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے پانی اس کنڈیشن میں تھا کہ اس کے اوپر لائف بوٹ کو اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اسی لیے اب کیپٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ لائف بوٹ کے ذریعے سے اس ٹاپو پر جانے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رہیں، کیونکہ اب ویسے بھی اس جہاز کے ڈوبنے کا بھی کوئی رسک نہیں تھا۔ تو فیصلہ ہوا کہ لمبے وقت تک اسی جہاز پر ہی رکیں گے اور مدد آنے کا انتظار کریں گے۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں کے کچھ دن وہیں پر گزرے کہ تبھی ایک دن ان لوگوں کی ٹیم کا جب ایک بندہ کلاک ٹاور پر کھڑا ہوا تھا تو اچانک سے اس کی نظر کچھ انسانوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ٹاپو کے جنگلوں کی طرف سے کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ شروع میں اس کو لگا کہ شاید یہ شپ کمپنی کے بندے ہیں، شپ کمپنی نے اپنے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے اور یہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر جب اس نے دھیان سے دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ ریسکیو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بڑے ہی عجیب و غریب انسان دکھ رہے ہیں، جن کا قد تو چھوٹا ہی ہے مگر دکھنے میں کافی ہٹے کٹے ہیں، بال گھنگرالے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ان کی پوری باڈی پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہے سوائے ایک بیلٹ کے کہ جس کو انہوں نے اپنی کمر پر پہن رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تیر، کمان اور بھالے تھے جو ان کے ہتھیار تھے جن کو یہ اوپر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جہاز میں موجود لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً ہی کپتان نے ہانگ کانگ میں شپ کمپنی کا جو آفس تھا وہاں پر فون لگایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ 50 کے قریب لوگ لکڑی کی بوٹ سے ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، شام تک وہ لوگ اس جہاز پر چڑھ جائیں گے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے ہیلی کاپٹر سے مدد بھیجیے اور یہاں پر ہتھیار گرائیے، ورنہ یہاں ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ دوستو، کپتان نے جب ہانگ کانگ میں یہ سب کچھ بتایا تو وہاں پر عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ سب سن کر جہاں ایک طرف کچھ ایسے تھے کہ جو کپتان کا مذاق بنا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حیران اور پریشان تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بھٹکا ہوا جہاز جس ٹاپو کے کنارے پر جا کر رکا ہے وہ ٹاپو کوئی عام ٹاپو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پچھلی کئی صدیوں سے وقت بیتا ہی نہیں ہے۔ اس پورے معاملے کی خبر جب دھیرے دھیرے پورے ہانگ کانگ میں پھیلی، بات حکومت تک پہنچی، تو جہاں ایک طرف حکومت کے ایک بندے نے کہا کہ شپ کا جو کپتان ہے وہ پوری طریقے سے پاگل ہو گیا ہے، تو وہیں اخبار نے اگلے دن یہ ہیڈنگ چھاپی کہ اس ٹاپو کے لوگ آدم خور ہیں کہ جو مار کر انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ ادھر جہاز کے حالات ایسے تھے کہ شپ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی مدد بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے اور یہ لوگ بھی قریب آ گئے ہیں، تو جس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کے ذریعے سے اس نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہتھیار وغیرہ تو کچھ خاص تھے نہیں، اسی لیے کسی نے ہاتھ میں پائپ اٹھایا تو کسی نے کوئی دوسری چیز اٹھا لی، اور اس طرح سے وہ اپنی جان کی حفاظت کرنے لگے۔ دوسری طرف یہ ٹاپو والے جو لوگ تھے یہ لگاتار جہاز کے اندر موجود لوگوں پر تیر برسا رہے تھے، حالانکہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ان کے یہ تیر نشانے پر لگ نہیں پا رہے تھے، ادھر ادھر ہو جا رہے تھے، اور کیونکہ جہاز کافی اونچا بھی تھا تو یہ لوگ لاکھ کوششوں کے باوجود اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اگلے ایک لمبے وقت تک یہ لوگ ایسے ہی جیسے تیسے اپنی جان بچاتے رہے، اور لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد انڈین نیوی کا ایک ہیلی کاپٹر ان کو
बचाने के लिए पहुंचा। जहाज में मौजूद जो लोग थे उनको बारी बारी से रस्सी के जरिए से हेलीकॉप्टर पर चढ़ाकर उनकी जान बचाई गई। मगर हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जब रस्सी के जरिए से बचाया जा रहा था तब भी ये टापू वाले लोग उनके ऊपर तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार भी इन लोगों का तीर निशाने पर लग नहीं पाया था। तमाम लोगों को बचा लिया गया और जहाज को वहीं पर छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में शिपिंग कंपनी को इस जहाज को डिसमेंटल करने का ठेका दिया गया था और बाद में जब कंपनी के वर्कर्स इसको डिसमेंटल करने के लिए वहां पहुंचे थे तो उनके ऊपर भी दस्तूर के मुताबिक हमले होने लगे थे। हमले करने का तरीका बिल्कुल वही था जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो कहां पर रहा था, ये जगह कहां है और इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये दरअसल उन सैकड़ों टापुओं में से एक टापू है कि जिन तमाम टापुओं को मिलाकर हम नाम देते हैं अंडमान एंड निकोबार। जी हाँ, इंडिया की वो यूनियन टेरिटरी के जो लगभग 836 छोटे बड़े टापुओं से मिलकर बनी है और जो इंडिया की मेन लैंड से काफी दूर समुद्र में मौजूद है। अब अंडमान का ये जो खास और अजीबोगरीब टापू है कि जिसके बारे में हमने बात की, तो इस टापू के नाम के हिसाब से ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी नाम दिया गया है सेंटिनली, आदिवासी लोग। और यही दुनिया के वो लोग हैं कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि पिछले 60,000 साल से इनका दुनिया की बाकी तहजीबों से, बाकी लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ा है। आज बाकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इन लोगों को उसकी कोई खबर नहीं है। ना तो इनके इलाके में कोई कदम रख सकता है और ना ही इन लोगों से मिल सकता है। इन लोगों को समझने के लिए अब अगर हम थोड़ा इतिहास का सहारा लें तो सबसे पहला रिकॉर्ड 13वीं सदी के आखिर में नजर आता है कि जब मार्को पोलो ने लिखा कि अंडमान के जो लोग हैं वो आदमखोर हैं, उनके दांत नुकीले और आंखें लाल होती हैं, वो इंसान को देखते हैं तो उसको मार ही डालते हैं। हालांकि बाद में आने वाले इतिहासकारों का ये मानना रहा है कि मार्को पोलो तो खुद कभी इस इलाके में आया ही नहीं था, तो मुमकिन है कि उसने अंडमान के लोगों से रिलेटेड ये तमाम बातें बाकी लोगों से सुनी हों और फिर उसको लिख दिया हो। अब साथियों, भले ही मार्को पोलो ने सुनी सुनाई बातें लिखी हों, लेकिन ये तो क्लियर हो जाता है कि उस दौर में भी अंडमान के लोगों से रिलेटेड इस तरह की बातें दुनिया में की जाती थी। आगे बढ़ें तो पहला रिकॉर्डेड जिक्र वो भी खास तौर से इसी टापू का हमको 1771 में मिलता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए इस टापू के पास पहुंचा था और इस जहाज में जो लोग सवार थे उन्होंने इस टापू पर आग जलती हुई भी देखी थी, मगर ये लोग भी इस टापू पर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। जहां तक सवाल बाकी दुनिया के लोगों का इस टापू के ऊपर कदम रखने का है तो वो 1867 में हुआ था कि जब एक जहाज करीब में ही क्रैश हो गया था। जहाज से लगभग 86 के करीब लोग उतरे थे और इस टापू पर पहुंच गए थे। इन लोगों को टापू पर रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए तो ये लोग बिना किसी टेंशन के वहां पर आराम से वक्त गुजार रहे थे। मगर 3 दिन गुजर जाने के बाद जब एक दिन ये लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे कि तभी अचानक से टापू के लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोग वहां से भागे और जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बाद में कंपनी के जहाज ने इन तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया था। थोड़ा और आगे बढ़े तो वक्त आता है 1880 का कि जब इस टापू के लोगों की और बाकी दुनिया के लोगों की पहली मुलाकात हुई। हुआ ये था कि रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन अपनी पूरी एक टुकड़ी लेकर ही इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद इनको वहां पर एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिले। इन 6 के 6 लोगों को इन्होंने वहां से उठाया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। वहां पहुंचकर कुछ वक्त के बाद ही जो बूढ़ा आदमी और औरत थी उन दोनों की मौत हो गई और फिर देखते ही देखते बच्चों की भी तबीयत खराब रहने लगी। ये देखकर अफसर को उन पर तरस आने लगा, क्योंकि अफसर समझ गए थे कि अगर इनको यहाँ पर कुछ और वक्त रखा गया तो इनका अंजाम भी शायद वही होगा। इसीलिए अफसर ने फौरन ही इन 4 बच्चों को इनके टापू पर दोबारा वापस भेज दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस टापू के लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोई खास कोशिश नहीं की। हालांकि 1896 की एक घटना का जिक्र मिलता है कि जब काला पानी से भागा हुआ एक कैदी किसी तरह से एक नाव के जरिए से इस आइलैंड तक पहुंच गया था। बाद में पीछा करते हुए जब एक टीम इस कैदी को ढूंढने के लिए पहुंची थी तो उसको इस कैदी की लाश मिली थी, जिसकी लाश के ऊपर तीरों के निशान थे और उसके गले को भी रेत दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से आखिरी के कुछ दशकों में अंग्रेजों ने इन लोगों से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल वैसे ही आज़ादी मिल जाने के बाद इंडिया की जो अपनी गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ साल तक इन लोगों से कांटेक्ट बनाने में या किसी तरह से बातचीत करने में
कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मगर 1967 में एक बड़ा बदलाव देखा गया कि जब इंडियन गवर्नमेंट की इजाज़त से कुछ खास टीमों ने यहाँ पर जाना शुरू किया। त्रिलोकनाथ पंडित वो मशहूर चेहरा हैं कि जो 1967 के दौर में इस टापू पर पहुंचे थे। वो पूरी एक सरकारी टीम के साथ थे। जैसे ही उनकी नाव इस टापू के किनारे पर पहुंची तो उन्होंने दूरबीन के जरिए से देखना शुरू किया। तो देखने पर उनको इस टापू के कुछ लोग नजर भी आए थे, मगर जैसे ही उन्होंने अपनी तरफ इस नाव को आता हुआ देखा था तो वो जंगल की तरफ भागने लगे थे। त्रिलोकनाथ पंडित के जो अकेले नहीं थे बल्कि पूरी टीम के साथ आए थे और तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने भी आइलैंड पर कदम रखा और जो भागने वाले लोग थे उनके कदमों के निशान को देखते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए वो जंगलों में पहुंचे जहां पर इनको लगभग 18 के करीब उन लोगों की झोपड़ियां नजर आईं। इन सारी झोपड़ियों को घास और लकड़ी की मदद से बनाया गया था। वहां पर आग जल रही थी और इसके अलावा वहां पर शहद और सूअर की हड्डियां भी मौजूद थीं। लकड़ी के बर्तन भी मौजूद थे और हथियारों के तौर पर तीर, कमान और भाले भी मौजूद थे। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम की वहां के टापू के किसी बंदे से तो मुलाकात नहीं हो सकी, मगर आते आते ये लोग वहां पर कुछ नारियल और मेटल के बर्तन जरूर छोड़ आए थे, क्योंकि वहां पर इन लोगों को जो कुछ तीर दिखाई दिए थे उन तीरों की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे ये तो समझ में आ गया था कि ये लोग मेटल से वाकिफ हैं। आगे बढ़े तो 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया कि जब एक सर्वे टीम को भेजा गया जो वहां पर पहुंची और वहां पर जाकर उसने एक पत्थर लगाया जिस पत्थर पर लिखा हुआ था कि ये द्वीप इंडिया का हिस्सा है। याद रहे कि ये वो वक्त था कि जब इस टापू के चर्चे इंडिया के साथ साथ बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी होने लगे थे। इन्हीं चर्चों की वजह से 1974 में फिर हम देखते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रवाना होती है। डॉक्यूमेंट्री बनाने जाने वाली इस टीम का मकसद ये भी था कि कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जाएगी, वो चाहे एक गिफ्ट देने के जरिए से हो या फिर इशारों इशारों में बात करने के जरिए से हो। मगर ये लोग अभी टापू के किनारे पर ही पहुंचे थे कि इनके ऊपर तीरों की बरसात होने लगी। इन बेशुमार तीरों में से एक तीर सीधा जाकर डायरेक्टर को भी लगा। जैसे ही डायरेक्टर को तीर लगा तो टापू का वो इंसान कि जिसने ये तीर चलाया था वो देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बाद में एक पेड़ के नीचे जाकर खामोशी से बैठ गया। ये टीम जान बचाने की खातिर पहले वापस लौटी और बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने फिर से आइलैंड के किनारे पर आने की कोशिश की और जैसे तैसे ये लोग 3 दिन के बाद इसके किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां पहुंचकर इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ गिफ्ट छोड़े, जैसा कि कुछ नारियल, कुछ बर्तन और एक सुअर और साथ ही साथ प्लास्टिक की एक गुड़िया और एक कार। दरअसल ये सारी चीजें यहाँ पर इसीलिए छोड़ी गई थीं ताकि बाद में ये देखा जा सके कि इनको देखने के बाद यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर छोड़कर जैसे ही ये टीम दूर पहुंची तो इन्होंने देखा कि टापू के जो लोग हैं उन्होंने नारियल और बर्तनों को तो रख लिया, मगर जो सुअर था उसको मारकर जमीन में दफना दिया और साथ ही साथ जो प्लास्टिक की गुड़िया या कार थी उसका भी यही हाल किया, मतलब उसको भी जमीन में दफना दिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 70 और 80 के दशक में ही इन लोगों से कई बार अलग अलग तरीकों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई। हर बार ही ये लोग गिफ्ट तो ले लिया करते थे, मगर अगर कोई भी इंसान इनके करीब जाने की कोशिश करता था तो फौरन तीर चला दिया करते थे। हालांकि यहाँ पर 1991 वाली घटना को जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि 1991 में जब इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई थी तो कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी गईं। मिसाल के तौर पर इस बार जो टीम इनसे कांटेक्ट बनाने के लिए गई थी उसमें एक औरत भी शामिल थी जिनका नाम था मधुमाला चट्टोपाध्याय। खास बात ये थी कि ये पहली बार था कि जब इस टापू के लोगों का सामना हमारी दुनिया की एक औरत से हो रहा था। यही रीजन था कि इस मुलाकात में कुछ ऐसी चीज देखी गई कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हुआ ये कि जब मधुमाला और टीम के बाकी लोग इन लोगों को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे थे या इनसे इशारों इशारों में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से इन्हीं आदिवासियों के एक आदमी ने मधुमाला के ऊपर तीर तान दिया। एक आदिवासी आदमी का तीर तानना था कि फौरन ही उन्हीं में से एक औरत ने, मतलब आदिवासी औरत ने ही उस आदमी को धक्का देते हुए पीछे हटा दिया। इस मुलाकात के दौरान टीम ने इन लोगों को गिफ्ट के तौर पर बहुत सारे नारियल दिए कि जो पहले तो पानी में बहाकर दिए गए थे, मगर बाद में धीरे धीरे ये लोग हाथों से लेने के लिए भी करीब आ गए। ये शायद पहली बार था कि जब इस टापू के लोग बाकी दुनिया के इंसानों से इतने करीब से और इतनी शांति के साथ मिल रहे थे। आज इंटरनेट पर हम लोगों को
इस आइलैंड के लोगों की जो कुछ गिनी चुनी तस्वीरें दिखाई देती हैं, उनमें से कुछ तस्वीरें दरअसल इसी मुलाकात की हैं। इसके बाद भी फिर यहाँ के लोगों से कई बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, मगर कुछ खास कामयाबी मिली नहीं और 1996 में तो फिर गवर्नमेंट ने ही पूरी तरीके से इस चीज पर पाबंदी लगा दी। 2004 में खतरनाक सुनामी के बाद जब इस टापू का हवा से मुआयना किया गया और ये देखने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो ये लोग सलामत दिखाई दिए। मतलब ये लोग उस सुनामी से बचने में कामयाब हो गए थे। बल्कि बाद में गवर्नमेंट ने जब हेलीकॉप्टर के जरिए से खाने पीने का सामान यहाँ पर फेंकने की कोशिश की थी, तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर देखते ही फौरन तीर दिखाने शुरू कर दिए थे। आगे बढ़े तो इस टापू से जुड़ी हुई एक और घटना हमको 2006 में नजर आती है कि जब हुकूमत की तरफ से यहाँ जाने पर कंप्लीट बैन होने के बावजूद भी 3 मछुआरे केकड़े पकड़ने के लिए इस आइलैंड पर पहुंच गए थे। 3 दिन के बाद इन तीनों की लाशें मिली थी। इनको न सिर्फ यहाँ के लोगों ने कत्ल किया था, बल्कि इनकी लाशों को बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया था, जिसका मकसद शायद ये था कि उन बाकी लोगों को भी एक वार्निंग दी जा सके कि जो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। बाद में जब इन लोगों की लाशों को वहाँ से निकालने की कोशिश की गई थी, तो जो लोग लाशें लाने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी हमले किए गए थे। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि क्योंकि हुकूमत ने खुद इन लोगों से कांटेक्ट करने पर बैन लगा रखा है, तो इसीलिए अब अगर दुनिया का कोई इंसान इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या इनके टापू पर जाता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मतलब हुकूमत की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत का तो यहाँ पर कोई कायदा कानून चलता ही नहीं है। आखिरी बार इस टापू के लोग 2018 में उस वक्त चर्चाओं में आए थे कि जब एक अमेरिकी ईसाई मिशनरी इनके टापू पर पहुंचा था। गैर कानूनी तरीके से इस टापू पर पहुंचने वाले इस अमेरिकी ईसाई का ये मकसद था कि वो किसी न किसी तरीके से ईसाई धर्म की जो शिक्षा है, जो तालीम है, वो इन लोगों तक जरूर पहुंचा देगा। 15 नवंबर वो दिन था कि जब जॉन एलन इस टापू पर पहुंचा था और इसके बाद उसने 2 बार गिफ्ट देकर या फिर गीत वगैरह गाकर इन लोगों से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, या हम ये कह सकते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो इस इंसान की तमाम चीजों पर ही सिर्फ जोर जोर से हंस रहे थे। 2 दिन के बाद मतलब कि 17 नवंबर को चाओ आखिरी बार इस टापू पर पहुंचा और वहीं पर रुका, और वो बोट वाला कि जो उसको पास के इलाके से इस टापू पर लेकर आया था, उसको चाओ ने वापस जाने को कहा। उसी बोट वाले ने ही बाद में दुनिया को बताया कि उसने आखिरी बार चाओ को तब देखा था कि जब आदिवासी उसको घसीट कर ले जा रहे थे, और अगले दिन इसी जॉन एलन चाओ की लाश इस टापू के किनारे पर लटकी हुई मिली थी। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई कि जॉन एलन की लाश को किसी तरह से वापस लाया जा सके, मगर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो भी आसपास भटकने की कोशिश करता है उसके ऊपर ये लोग हमेशा तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। अब अगर और आगे बढ़ें और इन लोगों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास बातें जानें कि जो अभी तक हमको पता चल पाई हैं, तो एक तो ये है कि ये लोग अपनी गर्दनों में अपने मरे हुए साथियों की हड्डियां पहनते हैं। अब हड्डियां तो पहनते हैं, मगर क्या सच में ये आदमखोर भी हैं? मतलब क्या इंसानों को खाते हैं? इसका अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल सका है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये लोग आदमखोर नहीं हैं, बल्कि शिकार करते हैं और जानवरों को खाते हैं। ये लोग सोते जमीन पर हैं, जबकि रहने के लिए झोपड़ियां बनाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग अभी भी खेती करना नहीं जानते हैं, इसीलिए ये या तो जानवरों का शिकार करते हैं या फिर जो बाकी अलग अलग तरीके की खाने पीने की चीजें हैं उनको इकट्ठा करते हैं। और तो और ये लोग अभी तक आग जलाना भी नहीं जानते हैं, इसीलिए जब भी कहीं बिजली गिरती है, आग लग जाती है, तो उस आग को ये हिफाजत से रख लेते हैं ताकि आगे तक काम आ सके। इस टापू पर ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, इनकी आबादी 150 से 200 के करीब है, और ये लोग जो जबान बोलते हैं वो अंडमान के जो बाकी सारे टापू हैं उनसे काफी अलग है। शायद यही वजह है कि बाकी दुनिया के लिए इनसे कांटेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। ये लोग नाव बनाना या उसका इस्तेमाल करना तो जानते हैं, मगर खुद से तैरना नहीं जानते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा दी है, तो इसीलिए अब ना तो कोई इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और ना ही ये खुद चाहते हैं कि दुनिया के लोग इनसे कांटेक्ट करें। अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि इनको इतना ज्यादा अलग थलग रखने की जरूरत क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इनकी खुद की हिफाजत। जी हाँ, हम देख चुके हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने अंडमान के इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया था, तो यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के लगभग 7000 आदिवासी हुआ करते थे। मगर जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो अपने साथ बेशुमार अलग अलग तरह की बीमारियां भी लेकर आए। अब ये सारे आदिवासी के जो हजारों सालों से
दुनिया से कटे हुए थे, इनकी बॉडी इन सारी नई नई बीमारियों के लिए तैयार ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि इनके जिस्म इन नई नई बीमारियों से लड़ ना सके और बड़ी तेजी के साथ इन सभी की मौतें होनी शुरू हो गईं। आज लगभग 150 साल गुजर जाने के बाद हालात ऐसे हैं कि 7000 में से सिर्फ और सिर्फ 300 बचे हैं। ज्यादातर जनजातियां तो पूरी तरीके से ही लुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ सेंटिनली जनजाति ही एक ऐसी है कि जो बाकी दुनिया के कनेक्शन में नहीं आई है। शायद यही वजह है कि ये लोग अभी तक पूरी तरीके से महफूज भी हैं। अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आखिर गवर्नमेंट भी खुद ये क्यों चाहती है कि इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और इनसे ज्यादा कांटेक्ट बनाने की कोशिश न की जाए। बाकी दोस्तों, आखिर में जाते जाते इस टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।